everyone. This is the third video of our English grammar series, and in this video we will cover the topic direct and indirect speech. Okay, so before I start this video, let me mention few rules that are frequently used in direct and indirect speech. So इसमें reporting verb क्या होता है, reported speech क्या होता है, conversion from one tense to another वो हम देखेंगे, and जो कुछ words हैं, specific words like today, tomorrow, yesterday, now, इन सब का कैसे conversion होगा. So basically every in and out about narration हम सीखेंगे इस वीडियो में. So let's start this video with this tense, which is a present indefinite. So basically narration में क्या होता है कि sentence जो होता है, कोई भी sentence है उसके two parts होते हैं. There are two parts of a sentence. The first one is reporting verb and the other one is reported speech. तो reporting verb कौन सा हुआ? Reporting verb होगा like Ram says that he will write a letter. तो Ram says is the reporting verb and he will write a letter would be the reported speech. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि conversion कैसे होगा. तो present indefinite का जो sentence होगा उसका conversion होगा past indefinite में, simply past indefinite. So let me draw an arrow over here. Present indefinite will be converted into past indefinite. Likewise, present progressive will be converted into past progressive. So ये past progressive में क्या? And then comes the present perfect. Present perfect will be converted into past perfect. So the arrow goes from here to here. And last one is present perfect continuous. And the present perfect continuous will be converted into past perfect continuous. Past perfect continuous. Okay. Moving on to the next tense, past indefinite. So कोई sentence अगर वो past indefinite का है तो उसका conversion किस में होगा? उसका conversion हम करते हैं past indefinite का conversion simply हो जाता है past perfect में, and past progressive के जितने भी sentences होते हैं उनका conversion हो जाता है past perfect continuous. It's as simple as that. प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का कन्वर्जन हम करेंगे पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट प्रोग्रेसिव का कन्वर्जन हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो लेट मी मेक द एरो दिस वे. आई होप इट्स क्लियर नाउ कि पास्ट इंडेफिनिट इज कन्वर्टिंग इनटू पास्ट परफेक्ट एंड दिस पास्ट प्रोग्रेसिव इज कन्वर्टिंग इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. And what about these two tenses, the past perfect and past perfect continuous? They will remain unchanged. इनका कोई conversion नहीं होगा. They will remain same. ये ऐसे ही रहेंगे, as it is रहेंगे ये दोनों. Moving on to the future indefinite. So future indefinite में helping verb which is used is will, and will be converted into would. सिंपल है ये बिल्कुल कि विल का कन्वर्जन इसमें हो जाएगा वुड में हो जाएगा, और कोई इसकी कन्वर्जन नहीं है. सिर्फ और सिर्फ विल को हमें वुड में वो कर देना है, उसको मॉडिफाई कर देना, वुड से रिप्लेस कर देना है बेसिकली. फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी वही होगा, बिकॉज फ्यूचर प्रोग्रेसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल बी, एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय वुड बी. विल बी को हमने रिप्लेस किया वुड बी से. Now comes the future perfect. अब future perfect है, and future perfect में हम helping verb क्या use करते हैं? Will have. So will have, it will be converted into would have. Would have. So simply will have is being converted into would have. Then comes the future perfect continuous. And future perfect continuous में helping verb क्या होता है? Will have been. तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा would have been से. तो अभी तक हमने क्या देखा? कन्वर्जन देखा है कि कैसे सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में, एंड देन
present progressive, past progressive, and then this present perfect is getting converted into past perfect, and then present perfect continuous is getting converted into past perfect continuous. And likewise इसमें मैंने आपको बता दिया कि past indefinite is getting converted into this tense, and this one is getting converted into past perfect continuous. Likewise future indefinite में हमें simply will को replace करना है would से. It's that easy. तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. तो लेट मी क्विकली रब द बोर्ड. Okay, so let me write a sentence on the board. It's Ram says, there is a comma and then quotation mark. I am watching a movie. I am watching a movie. Okay? This part of the sentence, ये जो part है, before the comma, the part which is before the comma is called the reported verb. So this part is what? The reporting verb. Reporting verb. And this part of sentence which is inside the commas is reported speech. So this part is basically the reported speech. This is reported speech. Okay, तो ये जो sentence है, this sentence is as of now in the direct speech. ये direct speech में है, और जब भी कोई direct speech में sentence given होगा तो उसके दो parts होंगे, reporting verb and reported speech. While converting from direct speech to indirect speech, we add that. तो इन दोनों को, इस सेंटेंस को जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रही हूं तो कन्वर्जन के टाइम पे वी विल ऐड दैट. बेसिकली यहां इस कॉमा को हम रिप्लेस करते हैं दैट से. सो दैट से हमने इसको क्या किया, रिप्लेस किया. द वेरी फर्स्ट रूल फ्रॉम conversion of the sentence from one to another, like direct from direct to indirect would be, let's focus on this word. Ram says. On this word, Ram says. तो Ram says जो है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो इस सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. इट विल रिमेन सेम. ये जैसे है वैसे ही रहेगा. तो इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे होगा. ये राम सेज, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा राम सेज दैट. राम सेज दैट. ओके, मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. इट विल रिमेन सेम. तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, राम सेज दैट ही इज वॉचिंग अ मूवी. He is watching a movie. Now see the tense of these two sentences. There is no difference between them. वो यहां भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही है और यहां भी क्या है, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है. क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. अब हम देखते हैं कि अगर हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में कर दिया, अब इस सेज को मैं रिप्लेस कर रही हूं सेड से, तो लेट्स सी क्या चेंजेस इसमें होंगे. अब इसको मैंने कर दिया सेड. राम सेड. राम सेड. अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट में हो चुका है. तो पास्ट इंडेफिनिट में जैसे ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा तो इसमें क्या होंगे, इसमें भी वो सर्टेन चेंजेस हमें करने पड़ेंगे.
तो मैंने जो अभी आपको पीछे डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें बताया था कि जो पास्ट ये जो सेंटेंस है, आई एम वॉचिंग अ मूवी, ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस है, तो इसका जो कन्वर्जन होगा वो किस में होगा? पास्ट प्रोग्रेसिव में होगा। तो पास्ट प्रोग्रेसिव में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं व्हाट? वॉज यूज करते हैं, वॉज एंड वर यूज करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे? वॉज से। ही वॉज वॉचिंग अ मूवी। तो द एंटायर सेंटेंस वुड बी राम सेड, दिस वुड बी सेड, SAID। राम सेड दैट ही वॉज वॉचिंग अ मूवी। तो अभी हम इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैंने इसमें चेंजेस किए हैं। जैसे ही मैंने बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जैसे ही आता है, प्रेजेंट से पास्ट में आया, सेड हो गया, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा। और अभी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस में है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है। एंड एज पर द रूल इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट प्रोग्रेसिव। और पास्ट प्रोग्रेसिव के अकॉर्डिंग हमने यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया? वॉज। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं कि उसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। सो ये हो जाएगा, राम सेज he will go to the market. He will go to the market. Inverted comma close. Ram says, it says, Ram says he will go to the market. तो अभी हम यहां से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में है ये, प्रेजेंट में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। सो सिंपली अगर फ्यूचर रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो सिंपली विल को हम रिप्लेस कर देंगे वुड से। तो यहां पे हमने क्या किया? राम सेज, अब हम यहां पे क्या ऐड करेंगे? दैट he would go to the market. He would go to the market, कि वो मार्केट जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस का कोई कन्वर्जन नहीं होता है, दे रिमेन सेम। सेकेंड रूल क्या था कि जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में जाता है वैसे ही इसमें भी हम चेंजेस करते हैं। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट प्रोग्रेसिव, लाइक दैट। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स हम ऐसे देखेंगे जिनका कन्वर्जन इनडायरेक्ट में कैसे होता है। जैसे कि एक वर्ड है नाउ, ये नाउ कन्वर्ट हो जाता है किसमें? देन में कन्वर्ट हो जाता है। देन द अदर वर्ड इज यस्टरडे, यस्टरडे गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाएगा ये। द नेक्स्ट वर्ड दैट कम्स इज टुमारो, इट्स टुमारो, एंड टुमारो गेट्स कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट डे। तो ये हो गया क्या? The next day. Then comes today. So today gets converted into that day. So these four words play a crucial role while converting from direct speech to indirect speech. तो ये जो भी words आएंगे किसी भी direct स्पीच में, ये वर्ड्स अगर मेंशन्ड है तो इनडायरेक्ट में उनको हम कन्वर्ट करने के टाइम पे क्या करेंगे? नाउ विल बी कन्वर्टेड इनटू देन, यस्टरडे विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रीवियस डे, टुमारो विल बी कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट डे, एंड टुडे विल बी कन्वर्टेड इनटू द दैट डे। दैट डे में ये कन्वर्ट हो जाएगा।
अब हम इसके और एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं कि कैसे इनका कन्वर्जन होगा। मैंने अभी तक आपको बताया कि किसी भी एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच किन किन केसेस में सेम रहेगा? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है एंड फ्यूचर में है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो क्या होगा? अनचेंज्ड होगा, वो दैट विल रिमेन सेम, जैसे है जिस टेंस में वो उसी टेंस में रहेगा। क्लियर? तो अभी मैं एक सेंटेंस लेती हूं, सिया सेड शी विल राइट अ नॉवेल टुडे। She will write a novel today. अब इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करने पे हमें ये समझ में आ रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो इसमें क्या होगा? चेंजेस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। बट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन दिस सेंटेंस? मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में है या फ्यूचर के किसी भी एक टाइप में है, तो उसको हम सिंपली रिप्लेस करते हैं वुड से। तो द एंटायर सेंटेंस क्या हो जाएगा? सिया सेड दैट शी वुड राइट अ नॉवेल दैट डे। It's as simple as that. Today will be converted into that day. So ये entire sentence क्या हो गया? Sia said that she would write a novel that day. अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मैं एग्जाम्पल लेती हूं, रोहन said, I ate 2 mangoes. I ate 2 mangoes. So इस सेंटेंस में क्या है? रोहन said, I ate 2 mangoes. मैंने 2 मैंगो खाया, राइट? तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, दिस पार्ट, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। एंड एज पर द रूल पास्ट इंडेफिनिट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? रोहन सेड दैट he had eaten 2 mangoes. He had eaten 2 mangoes. See, रूल के अकॉर्डिंग हमने किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट. सो एज पर द रूल ये हो गया क्या? दैट ही हैड ईटन 2 मैंगोज. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेंस. अगर मैं इसी में कुछ सर्टेन चेंजेस कर दूं और यहां पे मैं कर दूं ही वॉज ईटिंग 2 मैंगोज, सो इट विल बी लाइक दैट. रोहन सेड आई वॉज ईटिंग. ईट को रिप्लेस करते हैं हैव से रिप्लेस करते हैं इसको. आई वॉज हैविंग 2 मैंगोज. I was having 2 mangoes. I was having 2 mangoes. So ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कौन सा टेंस है? दैट इज past progressive. And as per the rule, past progressive will be converted into past perfect continuous. तो past perfect continuous में कैसे होगा ये? Rohan said he had been having 2 mangoes. Having
2 mangoes. 2 mangoes. There would be no comma at all. Full stop. So the entire sentence would be, Rohan said that he had been having 2 mangoes. Having is a verb itself. Have means खाना और पीना. खाने एंड पीने दोनों के लिए हम verb यूज करते हैं have. And eat and drink, both of them are replaced by have. और have की second form क्या होती है? Had. Third form is also had and the ing form would be having. So he had been having 2 mangoes. So moving on to the next tense. अब next tense पे हम देखते हैं कि उनमें कैसे conversion होगा. Next tense would be our present perfect. तो present perfect का एक example लेके हम देखते हैं. Sia said, I have visited the hospital. Hospital, inverted comma close. So यहां से इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करने पे हमें ये समझ में आ रहा है, सिया said, this reporting part is in past में है ये reporting verb, and ये जो हमारा सेंटेंस है ये भी किस में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में है. तो मैंने आपको फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग बताया है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंजेस करेंगे. बट इन केस दिस रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट फॉर्म और इन फ्यूचर फॉर्म, देयर विल बी नो चेंजेस मेड इन रिपोर्टेड स्पीच. इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. तो अभी ये पास्ट में है और पास्ट में होने की वजह से इसका कन्वर्जन हम किस में करेंगे? ये रिपोर्टेड स्पीच तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में होगा. तो द एंटायर सेंटेंस वुड बी, सिया सेड दैट शी had visited the hospital. That's how these sentences are converted from direct speech to indirect speech. तो अभी मैंने आपको मेजर जो 3 रूल्स बताए हैं. एज पर द फर्स्ट रूल कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होगा, only then certain changes will be made in reported speech, and if it's not in past form there will be no changes made in the reported speech. Secondly, मैंने आपको बताया कि जितने भी टेंसेज हैं उनका कन्वर्जन कैसे होता है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, लाइक दैट. और मैंने थर्ड रूल आपको बताया कि जो कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं लाइक नाउ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इनका कैसे कन्वर्जन हम करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. सो आज के इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक्स जो भी कवर किए हैं, रूल्स को जो हमने देखा है, उसके बिहाफ पे हम कुछ PYQs को सॉल्व करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड वी विल ट्राई टू नो मोर अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. So I hope this session would be helpful for you people. Let's see you in the next video.